Good morning, everyone. Let us start today's part. जितना पहले कर चुके हैं, obviously we will start next part. But before, let me ask one question. Yesterday, I asked to some students to send notebooks. I asked from Diamond, Ruby, and Pearl notebooks of A to F letters. A, B, C, D, E, F. Okay, but I got very less notebooks, very less. I don't know, you have not done the work or you just not taking seriously these points. What should I think? I think the work is not done. Yes, or you will not follow the instructions given by your teachers. Both reasons are there. We will not follow the instructions also, and मैम वी हैव नॉट डन द वर्क ऑल्सो. बेटा अगर मेरे पास नोटबुक नहीं आई है तो मैं तो यही सोचूंगी ना कि वर्क इज़ नॉट डन. यस, प्लीज़ आज भेज देना. ओके, आफ्टर द वीडियो व्हेन आई विल आस्क नोटबुक्स इन द लास्ट यू मे सेंड टू मी. क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट. एज यू ऑल नो, हम एडवर्ड जेनर तक कर चुके हैं. ओके, कि वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स हु हैज़ गिवन एडवर्ड जेनर. क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट पार्ट विल स्टार्ट. आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. इन योर चाइल्डहुड you must have been given injections to protect yourself against several diseases. Several means many. Okay, as you all are very aware that vaccination start, as I discussed earlier also, from the birth of a baby. Okay, so can you prepare a list of these diseases? I think I have given the question based on this also. You may take help from your parents. Okay, so parents से पूछना. You may ask from your parents कि at the starting which vaccine we got, which injection we got, after that which we got. एक ना file बनती है. You can see that file also. So it is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. You might have seen the advertisement on TV and newspapers regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. Okay, it is very important to protect all the children. Necessary vaccine available है nearby hospitals में भी. Okay, you have seen in the television also advertisements, newspapers regarding protection, and there is a program, Pulse Polio program, in which 5 drops of polio is given to the kids जो 5 ईयर तक के होते हैं. 5 या बिलो, 5 से ऊपर के नहीं. ओके, वो भी क्या है, जो पोलियो की ड्रॉप्स पिलाते हैं वो भी क्या है, एक इंजेक्शन ही है, वैक्सीन ही है जो ड्रॉप्स की फॉर्म में दी जाती है किड्स को. Okay, Pulse, it is written here also. Polio drops given to children are actually a vaccine. वो क्या है, एक्चुअल में एक वैक्सीन है. यहाँ तक कर चुके हैं. Is there any doubt to here? बेटा as I tell earlier also कि आप लोग भी साथ में रीडिंग करते रहे मेरे साथ. Okay, I am not already reading very fastly. मैं फास्ट रीड नहीं कर रही हूँ because you can read with me. When I am doing reading, your pencil should move with every word. Okay, so next, a worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication. Eradication means removal from most parts of the world. These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. Clear? आजकल वैक्सीन्स हैं जो किससे बनती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. किस लिए? टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो. ओके,
So it is about the vaccination. Next, increasing soil fertility. We are here in this part, increasing soil fertility. Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil. Enrich means to increase, soil को रिच करना nutrients में, soil with nitrogen and increase its fertility. Fertility means so that we can get a good harvest, we can get a good crop. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, what we call them? We call them biological nitrogen fixers. Okay, जो you can say organisms नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, जिससे वो इजीली यूज़ हो सके एटमॉस्फेयर में, उस फॉर्म में फिक्स करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. क्लियर? सो नेक्स्ट पे चले. एनी डाउट? डाउट तो आप लोगों को होता ही नहीं है. आई डोंट नो कि व्हाट इज़ द रीज़न. या तो सब कुछ क्लियर हो जाता है. हो जाता है. अगर होता है तो दैट्स वेरी गुड. इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो नेक्स्ट दिस इज़ द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो. एक तो राइजोबियम है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, साइनोबैक्टीरिया. क्लियर? एज आई गिवन द आंसर ऑलरेडी टू यू ऑल. क्लियर? सो नेक्स्ट है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का और क्या यूज़ है? क्लीनिंग द इन्वायरमेंट. ओके, सो बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग manure. About this we read in the first chapter, that can be prepared in the field, in the farmhouse. किससे? ऑर्गेनिक वेस्ट से. वो वेस्ट किसका होगा? that can be any of animals, from the kitchen waste, from the plants waste. Okay, along with their friends they collected waste of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. ओके, वेस्ट कहाँ से कलेक्ट करेंगे? नियर बाय हाउसेज से. किस चीज़ का? प्लांट्स का भी, वेजिटेबल्स का भी, फ्रूट्स का भी. दे पुट दैम इन अ पिट, मीन्स दे विल डिग एट वन प्लेस, देन दे विल पुट ऑल द वेस्ट देयर ओनली. दे पुट दैम इन अ पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल. जो किसके लिए बनाई है? वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए. ओके, आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड. डी मीन्स रिमूवल, उसका ब्रेक हो जाना, टूट जाना. ओके, इट विल डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर. और किस में चेंज हो जाएगी? मैन्योर में. बूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड. ये कैसे हुआ? सो एक्टिविटी 2.5 नाउ. लेट अस स्टार्ट. टेक 2 pots एंड फिल ईच पोट हाफ विद सॉयल. 2 पोट लिए और दोनों को सॉयल से हाफ फिल कर दिया. देन मार्क देम ए एंड बी. पुट प्लांट वेस्ट इन पोट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन द पोट बी. ओके, हमने जो 2 पोट लिए थे उनमें हम डिफरेंट मटेरियल रखेंगे. एक में तो सारा प्लांट वेस्ट रखेंगे, एक में ये पॉलीथीन बैग्स हैं, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स हैं, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज. ओके, पुट द पॉट असाइड. ऑब्जर्व दैम मीन्स उनको नोटिस करो. आफ्टर 3 or 4 वीक, 3-4 वीक के बाद हमें उनको ऑब्जर्व करना है. ओके, सो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 pots? कुछ डिफरेंस हमें मिलेगा. यू कैन थिंक योर सेल्फ ऑल्सो वट द डिफरेंस कैन बी देयर. जो प्लांट वेस्ट है वो तो ईजिली डिकम्पोज हो जाएगा, बट जो पॉलीथीन बैग्स हैं, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स हैं, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज़ हैं, क्या वो डिकम्पोज हो सकते हैं? नो ना, दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, बिकॉज एज वी नो कि प्लास्टिक
इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट. ये तो डिकम्पोज होगा ही नहीं. इट विल टेक मैनी मोर ईयर्स टू डिकम्पोज. अगर पॉलीथीन बैग्स को, प्लास्टिक को हम बर्न करते हैं, दे विल रिलीज हार्मफुल गैसेस जो हमारी एयर में मिक्स होके, इन्वायरमेंट में मिक्स होके, what they will do, they will cause air pollution. Okay, so we are here. Do you find any difference in the contents of the two pots? If so, what is the difference? You will find that plant waste in the pot A has been decomposed. जो pot A में है पूरा decompose हो जाएगा. How did this happen? The plant waste has been converted into manure बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स. जो प्लांट वेस्ट है किस में चेंज हो जाएगा? मैन्योर में. किसकी हेल्प से? माइक्रोब्स, और यू कैन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से. क्लियर? द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज बाय द प्लांट्स अगेन. ओके, क्योंकि प्लांट वेस्ट ही तो है. हमने प्लांट वेस्ट से को यूज़ किया और प्लांट में ही डाल दिया. ओके, एज अ मैन्योर. सो द थिंग्स विच आर देयर इन द प्लांट्स दैट कैन बी गिवन अगेन टू द प्लांट्स. ओके, डिड यू नोटिस दैट इन द पॉट बी द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज. जो हमने पॉट बी रखा था उसमें क्या क्या रखा था? पॉलीथीन बैग्स, yes, empty glasses, bottles, broken toys, plastics. They will not get any change. The microbes could not act on them and convert them into the manure. Microbe उन पे कुछ act नहीं कर पाएंगे. You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. Okay. So many times we see dead organic matter. प्लांट्स का वेस्ट होता है, अब एनिमल्स का भी वेस्ट होता है. किसकी फॉर्म में? डिकेड मैटर की फॉर्म में. मीन्स जो बिल्कुल डैमेज हो चुका है. यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम. वो थोड़ी इन सम डेज दे विल डिसअपियर. सो दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कन्वर्टिंग दैम इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस. किस में चेंज कर देंगे उनको? सिंपल सब्सटेंस में. कौन? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स. दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस एंड देयर बाय क्लीन अप द इन्वायरमेंट. और ये ऐसे हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं. कौन? microorganisms. Clear? So this is all about the friendly microbes, friendly microorganisms. अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे about harmful microorganisms. Okay? अब हम क्या पढ़ेंगे? About harmful microorganisms. So this is left harmful microorganisms में disease कौन कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं ह्यूमन्स में? कितनी टाइप की डिजीज़ होती हैं? पैथोजेंस क्या हैं? कैरियर्स क्या हैं? ओके, एंड दिस इज़ द वन चार्ट ऑल्सो गिवन. सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये भी हम पढ़ेंगे बाद में. ओके, एंड सम डिजीज़, कॉमन डिजीज़ इन प्लांट्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वो किस में थी? ह्यूमन डिजीज़. ये किस में है? प्लांट्स में. ओके, सो बेटा आई थिंक इट इज़ सफिशेंट फॉर द डे. आज के लिए सफिशेंट है बिकॉज हमें रिवीजन भी करनी है फर्स्ट चैप्टर की. ओके, सो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आई विल सेंड सम पार्ट नेक्स्ट डे ऑल्सो. आई विल नॉट गिव सो मच वर्क, डोंट वरी, बिकॉज इट इज़ अ लर्निंग टाइम फॉर द वीकली टेस्ट. लर्निंग टाइम है वीकली टेस्ट के लिए. सो प्लीज़ बी रेडी फॉर द रिविजन ऑल्सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, थैंक यू एवरीवन. गुड बाय. हैव ए नाइस डे. प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम, मीन्स वीकली टेस्ट. ओके, गुड बाय एवरीवन.